جمعہ میں میں نے جس موضوع کا آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے مومن کی موت۔ یوں تو دنیا کے اندر جتنے بھی طرح کے انسان ہیں، ہر انسانوں کے پاس موت آتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک کو موت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی موت و حیات اور ایک کافر کی موت و حیات میں زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ مومن جیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے جیتا ہے، اور ایک کافر جیتا ہے تو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے۔ ایک مومن کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے برعکس ایک کافر کا جینا بھی اللہ کے لیے اور اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ موت دونوں کو ہی آتی ہے، اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور موت کی سختیاں دونوں کو ہی ہوتی ہے۔ چاہے مومن ہو، اس کو بھی موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ایک کافر ہے تو اس کو بھی موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ موت کی سختیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، تاہم ایک کافر کو کچھ زیادہ ہی اذیتناک اور دردناک طریقے سے ان کی روح کو نکالی جاتی ہے۔ اس کے برعکس مومن کو اس کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ تاہم ایک مومن کی موت کی سختی بھی کم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو لوگ موت کے وقت، جب دنیا چھوڑنے کا وقت ہوتا ہے، موت کے وقت موت کی تکلیف کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں، جا رہے ہیں، آخری وقت میں ہیں، تو ان کو موت کی کم سے کم تکلیف اور شدت لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ موت کی کس طرح کی تکلیفیں ہیں، اس کی شدت کس طرح کی ہے۔ مگر وہ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر موت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو شدت ہے، اس کو بیان نہیں کرتے۔ مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے، لیکن خود جب ہمارے اتحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہوا اور لوگوں نے ان کی بات خود انہیں یاد دلائی کہ ہمارے اتحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر ان لوگوں کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ جو لوگ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ لوگوں کے سامنے موت کی تکلیف اور شدت کو بیان نہیں کرتے۔ آج بتا، آج تو موت کے منہ میں ہے، آج تو دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے، آج تو آخری وقت میں ہے، آج تو خود بتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی شدت کیا ہے، تو خود بیان کر۔ چنانچہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرد بھری سانس لی، ایک ٹھنڈی سانس لی، اور کہنے لگے کیا بتاؤں ساتھیوں، ایسا معلوم ہوتا ہے موت کی تکلیف، موت کی شدت، موت کی کیفیت ایسا معلوم ہو رہا ہے مانو آسمان زمین کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، اور میں زمین و آسمان کے بیچ میں ہوں، اور بس دونوں کے بیچ میں میں پس رہا ہوں۔ موت کی تکلیف کیا بتاؤں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ میرے گردن پر پہاڑ کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ موت کی تکلیف میں کیا بیان کروں، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ میرے پیٹ کے اندر کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہوں، جس سے میرا کر رہا ہے سب سے تکلیفیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی حضرت سرکار ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں موت کی تکلیف کے بارے میں کہ لوگوں موت کی تکلیف دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے بھی زیادہ ہولناک یہ موت کا منظر ہے، یہ موت کا لمحہ ہے، یہ موت کی تکلیف یہ آروں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بھلا بتائیے، ایک زندہ انسان ہے اور اس زندہ انسان کو اگر آرے سے چیرا جائے تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ موت کی تکلیف آروں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور موت کی تکلیف
कैंचियों के काटने से भी ज्यादा अजियतनाक है, और मौत की तकलीफ हड्डियों को उबालने से भी ज्यादा दर्दनाक है। इतनी मौत की तकलीफ है, इतनी मौत की शिद्दत है, ये मौत की तकालीफ और मसाइब का आलम है मेरे भाइयों और दोस्तों। यही वजह थी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कब्र को याद करके ज़ारो कतार रोया करते थे, क्योंकि दाढ़ियां आंसुओं से तर हो जाती थी। वे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, इतने बड़े दिलेर थे, इतने बड़े शुजा थे, ये बहादुर थे, और इस बहादुर का ये आलम था कि जब मौत को याद करते और कब्र को याद करते तो ज़ारो कतार रोने लगते। ये उमर इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने रोब वाले, दबदबा वाले, और रोते रोते उनकी आंखों के दोनों साइड में निशान पड़ गए थे आंसू बहने की वजह से। दोनों साइड में, आंख के दोनों साइड में आंसुओं के बहने की वजह से निशान पड़ गए थे। ये अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा का ये आलम था। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम कितने गफलत में जिंदगी गुजार लेते हैं, आज हमें इसका कुछ अंदाजा ही नहीं है, आज हमें इसका कुछ एहसास ही नहीं है, बस मनमाना जिंदगी गुजारते हैं, ना दीन से कोई मतलब है, ना शरीयत से कोई मतलब है। ऐसा मालूम होता है मानो हमें कोई तकलीफ का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, हमें मौत के वक्त कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मालूम होता है कि कब्र में हमारे लिए बहुत आसानी कर दी जाएगी। आज लोगों का ये आलम है कि आज अपने मामलात के अंदर ध्यान करके देखिए, अगर आप अपने आमाल के अंदर देखिए, अपने आमाल और अपने मामलात का हिसाब व किताब लगाइए, पता चलता है कि आज दुनिया के अंदर बहुत सी बुराई ऐसी है जो मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है। आज हर तरह की बुराइयां हैं जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। झूठ है, फरेब है, हरामखोरी है, रिश्वतखोरी है, घूसखोरी है, सूदखोरी है, ज़िनाकारी है, बेहयाई है, फहाशी है, और अफसोस हमारे नौजवान ये गंजेड़ी है, ये शराबी है, ये जुआरी है, ये ज़िनाकारी है। हर तरह की बुराइयां, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जो इनके अंदर मौजूद नहीं है। आज मोबाइल की इतनी लत लगी हुई है कि इनकी मोबाइल ये दिन रात ये पबजियों में गुजार देते हैं, ये फ्री फायर में गुजार देते हैं, और ना जाने नंगी तस्वीरें और नंगी फिल्में देखने में गुजार देते हैं। और ऐसा मालूम होता है मानो कि हमें हमारी जिंदगी बड़ी ही आसानी से गुजर जाएगी और आखिरत के मरहले भी हम आसानी के साथ तय कर लेंगे। इतनी अफसोस का मकाम है मेरे भाई और दोस्तों, बड़े बड़े सहाबा घबरा जाते थे, मौत को याद करके बेहोश हो जाया करते थे, और इतनी तकलीफ का सामना करते हुए उन्होंने जिंदगी बदल की। जब अल्लाह के नबी की मौत के वक्त इतनी ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी, तो जब अंबिया को, जब वो मौत की तकलीफ से बच नहीं सके, जो अंबिया थे, जो रसूल थे, ये अंबिया और रसूलों को जब इतनी जबरदस्त मौत के वक्त तकलीफें हुई, तो दुनिया के अंदर कौन इंसान ऐसा है जो मौत की तकलीफ से बच सकता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप मोमिन बनिए, आप मुसलमान बनिए, अल्लाह के अहकाम पर चलिए, नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी का गुजर बसर कीजिए। जो अल्लाह ने बताया है, जो नबी ने बताया है, यकीनन आप अगर मोमिना जिंदगी गुजारेंगे, आप अगर मोमिन की तरह जिंदगी का गुजर बसर करेंगे, आप नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, आप नबी अल्लाह के अहकाम और शरीयत के मुताबिक जिंदगी का गुजर बसर करेंगे, यकीनन आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियां होंगी। मौत के वक्त अगर जो मोमिन को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है, मगर साथ ही साथ मौत से पहले ही उसे बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुना दी जाती है। ऐसी खुशखबरी जिसे सुन करके एक मोमिन का दिल खुश हो जाता है। अभी मौत का वक्त होता है, आसमान से फरिश्ते आते हैं और पहले ही आकर के उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, अल्लाह की रहमत की खुशखबरी देते हैं, मग़फ़िरत की खुशखबरी देते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी की खुशखबरी सुना देते हैं। और आइए देखते हैं, सूरह हामीम सजदा है, आयत नंबर 30, 31 और 32 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह नक्शा खींचा है उन लोगों के बारे में जो मोमिन है, जो दीन पर साबित कदम रहते हैं। जब मौत का वक्त आता है तो उसके बाद उसका हाल क्या होता है। अल्लाह ने फरमाया
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। यकीनन जिन लोगों ने भी कहा हमारा रब अल्लाह है, वाकई जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर ये इक़रार करने के बाद हमारा रब अल्लाह है, ये कहने के बाद फिर उस दीन के अंदर वो साबित कदम रह गए, अपने कौल के अंदर वो साबित कदम रह गए, अपने अमाल के अंदर भी वो साबित कदम रह गए, दीन और शरीयत के अंदर साबित कदम रह गए। सुम्मा इस्तक़ामू, जरा साबित से मत नहीं हुए, चाहे लाख रुकावटें आई, चाहे लाख तकलीफें आई, चाहे लाख मुसीबतें आई, लोगों के कितने ताने सुनने पड़े, कितनी गालियां सुननी पड़ी, मगर उसके बावजूद उनके अंदर इस्तिकामत बरकरार रही, वो दीन के अंदर साबित कदम रहा, अल्लाह के रास्ते पर, नबी के तरीके पर, नबी की सुन्नत पर वो बरकरार रहा। ऐसे लोगों को किस तरह की खुशखबरी सुना दी जाती है, जो सुन्नत से बगावत नहीं करते, जो अल्लाह के हकाम से रूगर्दानी नहीं करते, बल्कि दीन के अंदर, तौहीद के अंदर साबित कदम रह जाते हैं, अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस कर लेते हैं, दुनिया वालों की परवाह नहीं करते हैं, अल्लाह की मर्जी का ख्याल करते हैं। सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते आते हैं उसके मौत के टाइम में, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, कि जरा सा भी डरो नहीं और गम मत करो, तुम डरोगे नहीं, अल्लाह तख़ाफू, खौफ मत खाओ, डरो नहीं और गम भी मत करो, जो आगे है उसके लिए डरो नहीं और जो पीछे है उसके लिए भी गम मत करो, आगे के बारे में भी नहीं, पीछे के बारे में भी नहीं, आगे क्या है, आगे कब्र की अज़ाब है, आगे क्या है, आगे मैदान महशर है, आगे क्या है, आगे अज़ाब जहन्नम है, और पीछे क्या है, पीछे तुम्हें छोड़ा है, अपनी बीवी को छोड़ा है, अपने औलाद को छोड़ा है, अपने भाई बहन को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा है, अपना मालो मता छोड़ा है, अपनी दौलत पूरी छोड़ी है, आगे के बारे में भी तुम अपने दिल के अंदर खौफ मत करो, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, और पीछे के बारे में भी तुम गम मत करो कि तुम्हारी औलाद की देखभाल कौन करेगा, तुम्हारे बीवी बच्चे की देखभाल कौन करेगा, वो अल्लाह तो वो है, वो परवरदिगार है। जब वो माँ के पेट में था तब से ही अल्लाह ने उसकी देखभाल शुरू कर दिया है, तब से अल्लाह ने उसे रोजी पहुंचाना शुरू कर दिया है, तब से अल्लाह ने उसके ऊपर निगरानी करना शुरू कर दिया है। वही अल्लाह है, आज भी तुम्हारे बाद वही अल्लाह आज भी उसे रोजी पहुंचाएगा, वही अल्लाह आज भी उसकी देखभाल करेगा। अल्लाह तख़ाफू, जो आगे है उसके बारे में भी डरो नहीं, और जो पीछे है उसके बारे में भी गम मत करो और डरो नहीं, घबराओ नहीं। वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति allती कुंतुम तुअदून, बल्कि तुम जन्नत की खुशखबरी सुन लो जिसका तुम वादा किए गए हो। वअबशिरू बिल जन्नति allती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की तुम खुशखबरी सुन लो जिसका तुम्हें वादा दिया गया है। और क्या आगे फरमाया, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया के अंदर भी तुम्हारे रफीक थे, तुम्हारे दोस्त थे, और आखिरत के अंदर भी हम तुम्हारे रफीक रहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे, हम तुम्हारे साथी रहेंगे, हम तुम्हारे मददगार रहेंगे। दुनिया के अंदर भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत के अंदर भी हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये खुशखबरी सुनाएंगे कौन? एक कौल के मुताबिक फरिश्ते सुनाएंगे, एक कौल के मुताबिक फरिश्तों का कौल है कि फरिश्ते कहेंगे कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, और दूसरे कौल के मुताबिक अल्लाह का, खुद अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह कहेगा कि हम तुम्हारे दुनिया के अंदर भी तुम्हारे रफीक थे और आखिरत के अंदर भी हम तुम्हारे रफीक रहेंगे और तुम्हारे दोस्त रहेंगे, इसलिए घबराओ नहीं, डरो नहीं। और कहा जाता है कि 3 मकामात पर 5 लोगों ने कहा, 3 जगहों में ये खुशखबरी सुनाएंगे, 3 जगहों में। पहली जगह मौत के टाइम में, जब मौत का वक्त होगा तो पहली जगह करके वो खुशखबरी सुनाएंगे। फिर दूसरी जगह जब वो कब्र में जाएगा तो दूसरी जगह कब्र में जाकर के खुशखबरी सुनाएंगे, वही खुशखबरी कि हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे, इसलिए तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं। और उसके बाद फिर जब कब्र से उठाया जाएगा
जब क़यामत का दिन होगा, जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तो इसराफील के सूर फूकने के बाद जब लोग कब्र से उठेंगे तो उस वक्त ये फरिश्ते पहुंच जाएंगे और कहेंगे अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे। वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदऊन, और तुम्हारे लिए उस जन्नत के अंदर तुम जो चाहोगे वही मिलेगी और जो तुम मांगोगे वो सारी चीजें तुम्हारे लिए रहेंगी। नज़रम मिन गफूर रहीम, ये गफूर रहीम रब की जानिब से बतौर मेहमानी होगी। ये खुशखबरियां हैं, अजीम खुशखबरी किसे सुनाया जाएगा? एक मोमिन इंसान को सुनाया जाएगा, एक मुसलमान इंसान को सुनाया जाएगा जिसका अल्लाह के ऊपर ईमान होगा, जो दीन के अंदर साबित कदम रहा होगा, जो शरीयत के अंदर डट करके रहा होगा, हक बात को जिसने कबूल किया होगा। हक बात ये कबूल करना एक बात है, हक को एक्सेप्ट करना, मान लेना, कबूल कर लेना ये एक बात है, और फिर उस हक को कबूल करने के बाद अपने जबान से उसका इकरार और ऐलान करना यह उससे भी बड़ी बात है। और जबान से इकरार करने के बाद फिर उस पर अमल करना यह उससे भी बड़ी बात है। और फिर अमल करने के बाद उस पर साबित कदम रह जाना, डट जाना, लोगों की मर्जी का ख्याल ना करते हुए सिर्फ रब की मर्जी का ख्याल करते हुए उस पर अमल करते हुए डट गया, साबित कदम रह गया, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे लोगों के लिए जो दीन पर इस्तिकामत दिखाते हैं, जो दीन पर साबित कदम रहते हैं, आखिरी वक्त में फरिश्ते उसे खुशखबरियां सुनाएंगे और वो बड़े ही खुश होंगे। हज़रत अहमद की एक लंबी हदीस है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर वो हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वो हदीस क्या है कि मौत के टाइम में, मौत के वक्त में आसमान से फरिश्ते आएंगे, मौत के वक्त में आसमान से फरिश्ते आएंगे। वो फरिश्ते कैसे होंगे? रोशन चेहरे वाले होंगे, उनका चेहरा सूरज की तरह ताबनाक होगा, वो नूर चेहरे वाले फरिश्ते आएंगे और आसमान से कफन लेकर के आएंगे, खुशबूदार कफन लेकर के आएंगे और आकर के मोमिन के सामने बैठ जाएंगे। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अल्लाह का हुक्म होगा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत है, जो रूह को कब्जे करने वाला फरिश्ता है, वो आके पहुंच जाएगा और आने के बाद आते ही मोमिन के सामने जाएगा और सबसे पहले उसे सलाम कहेगा। जब सलाम कहेगा तेजी से एक मोमिन जान लेगा, मालूम हो जाएगा इजराइल मलकुल मौत इसने मुझे सलाम किया है, फरिश्तों ने मुझे सलाम कहा है। इसका मतलब मेरी जिंदगी जो होगी, आखिरत की जिंदगी, ये आसान जिंदगी होगी, आराम की जिंदगी होगी, सुख की जिंदगी होगी। एहसास हो जाएगा उसके अंदर। आपने कभी कभार देखा होगा मौत के टाइम में कुछ लोगों को मुस्कुराते हुए देखा होगा, मौत के टाइम इतनी तकलीफ और उस समय ही उसके होंठ के अंदर मुस्कुराहट देखा होगा, फरिश्ते आके सलाम करते हैं और वो बड़े ही वीरान हो जाता है। और वो जिब्राइल उसे खुशखबरी सुनाता है कि पाकीज़ा रूह चल निकल, निकल अल्लाह की रज़ा की तरफ, अल्लाह की खुशनुदी की तरफ निकल, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की तरफ निकल, ऐ पाक रूह चल जन्नत की तरफ निकल। ये खुशखबरी सुनाती जाती है। और फिर मोमिन की रूह बड़े ही आसानी के साथ उसके जिस्म से निकल जाती है। बड़े ही रूह निकलते वक्त तकलीफें हो मगर जल्द ही निकल जाती है। नबी ने मिसाल दिया जैसे मशकेजा है, मशकेजा को मुंह को खोल दिया जाए तो पानी को पिलाया जाए तो कितनी आसानी के साथ उसका मशकेजा से उसका पानी निकल जाता है, कितनी आसानी के साथ निकल जाता है वो पानी। ऐसे ही मोमिन की रूह निकलेगी। और काफिर की रूह के बारे में आपने सुना तो वो फरिश्तों की फटकार सुन करके जिस्म के अंदर ही घूमती रहेगी, निकलना नहीं चाहेगी। फरिश्ते फिर क्या करेंगे? उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे
अब उसके जिस्म के अंदर डूब करके उसकी रूह को निकालेंगे और मोमिन की रूह बड़े ही आसानी के साथ निकाली जाएगी। जैसे ही मलकुल मौत निकालेंगे, मलकुल मौत के हाथ से गौरवीय फरिश्ते लेंगे और लेकर के जन्नत के लाए हुए कफन में जो खुशबूदार कफन होगा उस कफन में उसे लपेट देंगे और लपेट करके आसमान की तरफ चलने लगेंगे। इतना खुशबू होगा कि उसके खुशबू का ये आलम होगा कि वो दुनिया से चलेंगे ही कि आसमान के ऊपर उसकी खुशबू का एहसास फरिश्तों को होने लगेगा। कुरान के फरिश्ते पहले ही बात करेंगे कि लगता है कोई पाक रूह आ रही है, लगता है कोई पाकीज़ा रूह यहाँ पे आ रही है। फिर वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं। फिर ये फरिश्ते जैसे उसकी रूह को लेकर आसमान के ऊपर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाया जाता है, अंदर से सवाल होता है कौन है? जवाब मिलता है ये फला बिन फला है। इसीलिए उसका जो दुनिया में सबसे अच्छा नाम था उस नाम से उसे पुकारा जाएगा, ये फला बिन फला है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको आपको सोच समझ करके बच्चों का नाम रखना चाहिए। अच्छा जो नाम है, हम अच्छे नाम का इंतखाब करें। हकीकत के वक्त आज हम और आप हीरो का नाम रखते हैं, क्रिकेटर का नाम रखते हैं और पता नहीं जो मशहूर क्या क्या है उनका नाम वो रखते हैं। हम अच्छा नाम रखिए। कल क़यामत के दिन जब मौत के वक्त जब ये रूह जाएगी, फरिश्ते पूछेंगे कौन सी रूह है? कहा जाएगा जो दुनिया में उसका अच्छा नाम था, ये फला बिन फला है। फिर उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। पहले आसमान में जितने फरिश्ते होंगे सब उसके साथ हो जाएंगे, दूसरे आसमान में पहुंचेंगे। दूसरे आसमान में दरवाजे को खटखटाया जाएगा, वहां भी सवाल जवाब के बाद वहां भी खोल दिया जाएगा। दूसरे आसमान में दाखिल हो जाएंगे, फिर वहां के जितने फरिश्ते रहेंगे सब उसके साथ हो जाएंगे। हाय हाय, किस तरह की इस्तेमाल कर रहे होंगे एक मोमिन की रूह की, किस तरह इज्जत और तकरीम दे रहे होंगे एक मोमिन की रूह की। आज दुनिया के अंदर कोई मिनिस्टर आ जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, उसके पीछे कितने लोग चलते हैं, तो इस तरह उनको किस तरह अपने अंदर महसूस होता है कि मेरे पीछे कितने लोग आ रहे हैं, अपने आप को फख्र महसूस करता है। और ये एक मोमिन है जिसके इस्तेमाल में फरिश्ते आगे पीछे, दूसरे आसमान से तीसरे और तीसरे आसमान के तमाम फरिश्ते उसके साथ होते चौथे और चौथे के पांचवें और इसी तरह एक बार सातवां आसमान के ऊपर फिर में जाकर के अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, मेरे बंदे के नाम आमाल को इल्लीन में लिख दो, जहां पर तमाम रूहें मौजूद होंगी। जब ये इंसान जब वहां जाएगा, पहले से मौजूद बहुत सारी रूहें वहां रहेंगी, वो सबसे मुलाकात होगी। जब उनसे मुलाकात होगी वो पूछेंगे और खैर खैरियत सवाल जवाब एक दूसरे से करेंगे। वो रूहें खुश होंगी इसे देख करके और कहेंगे क्या हाल है, फिर पूछेंगे दुनिया का क्या हाल है, फलां का कैसा हाल है, वो किस तरह है, उसकी कैसी जिंदगी गुजर रही है। इस तरह सवाल जवाब करते करते फिर एक इंसान के बारे में पूछेंगे फलां का क्या हाल है, तो कहेंगे फलां तो मुझसे पहले ही दुनिया से आ चुका है, कहाँ आया तो फिर कहाँ है, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। बड़े ही अफसोस करेंगे कि जब वो यहाँ आया नहीं, हमसे पहले उसकी मौत हो गई है और यहाँ वो पहुंचा नहीं, इसका मतलब वो गया कहाँ? समझ जाएंगे उसका ठिकाना जहन्नम में हो गया। तब तो उसकी रूह सिज्जीन में होगी। वो यहाँ नहीं आया, इसका मतलब वही जगह है कि दूसरी सिज्जीन है, इसका मतलब वो सिज्जीन में होगा। बड़े ही अफसोस करेंगे कि वो इंसान किस तरह इंसान था, इतना अच्छा इंसान था, ऐसा था वैसा था, लेकिन हमारे अफसोस है कि उसने जन्नत को हासिल नहीं कर सका और उसने जहन्नम में अपना ठिकाना बना लिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर उसकी रूह को उसके जिस्म के अंदर लौटा दी जाएगी, फिर उसे नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर कब्रिस्तान लेके चलेंगे। वो खुद कहेगा मुझे जल्दी पहुंचा, मुझे जल्दी पहुंचाओ। कब्रिस्तान ले जाएंगे, कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। उतारने के बाद दो फरिश्ते उनके लगे आएंगे, उसे सवाल जवाब करेंगे। बड़े ही खौफनाक फरिश्ते, दांतें होंगी बड़ी लंबी दांतें होंगी, बड़ी आंखें होंगी, उनसे सवाल जवाब करेंगे। एक ऐसी मखलूक जो बड़ा ही खौफनाक होगा, जिसको उसने कभी देखा ही नहीं था, मगर इतना डरावना और इतना खौफनाक फरिश्ता को देखने के बाद भी मोमिन जरा सा भी घबराएगा नहीं और कहेगा, सवाल जब तक करेगा फरिश्ते करेंगे उनकी नकीर तो ये कहेगा रुक जाओ, पहले मुझे नमाज पढ़ने
की नमाज बहुत ना हो जाए। भाइयों दोस्तों, अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो फिर कब्र में कैसे कह सकते हैं कि मुझे नमाज पढ़ने दो? एक मोमिन का अगर रुक जाओ, पहले नमाज पढ़ने दो, और जब उसे पता चलेगा अरे ये तो कब्र है, यहाँ तो नमाज पढ़ी नहीं जाएगी, तो फिर वो कहेगा अच्छा पूछो क्या पूछना चाहते हो। 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन कौन है? जवाब दे देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है। जब ये जवाब देगा तो फिर फरिश्ते उसके लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल करके उसको जहन्नम दिखा देंगे और कहेंगे जहन्नम की तरफ सुराग करके ये वो जहन्नम है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रहम करम से तुम्हें बचा दिया है। फिर जन्नत की तरफ सुराग करके जन्नत की तरफ पीठी खोल के जन्नत दिखा देंगे। एक खूबसूरत जन्नत है जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए अता किया है, और ये जन्नत की वो महल है जहाँ पे तुम्हें रहना है। इतना सुनेगा कि वो खुश हो जाएगा, कहेगा कि मुझे दुनिया के अंदर वापस जाने दो, वापस जाने दो, सिर्फ मैं अपने घर वालों को ये बता दूं कि मेरा आखिरत का ठिकाना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी जगह मिली है मुझे आखिरत के अंदर। इतना बता के फिर मैं वापस हो जाऊंगा, लेकिन आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद एक इंसान आएगा, बड़ा ही खूबसूरत होगा, वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तुम्हारा नेक आमाल हूँ। ये देख कर और ज्यादा खुश होगा, कहेगा अल्लाह क़यामत कायम कर दे, अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर दे, अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर दे। काफिर कहेगा अल्लाह क़यामत कभी भी कायम मत करना, और ये कहेगा अल्लाह जल्दी क़यामत कायम कर दे। फिर दुनिया के अंदर फिर कब्र के अंदर क्या किया जाएगा? उसे जन्नत का लिबास बना दिया जाएगा, जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा, और उसकी कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाएगा, इतना लंबा चौड़ा कर दिया जाएगा, हदीस में है कि 70 हाथ लंबा चौड़ा उसकी कब्र को कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरी हदीस में हफ्ते निगाह तक जहां तक वो देख पाएगा इतना लंबा चौड़ा उसके कब्र को कर दिया जाएगा। फिर उसे कहा जाएगा तुम आराम से सो जाओ, यहाँ तक के जिस तरह एक नई हवेली दुल्हन सोती है और उसके शोहर के अलावा उसे कोई नहीं जगाता है, इसी तरह तुम आराम से सो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हें जगाएगा। भाइयों दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आखिरत को तबाह ना करें। हम आखिरत के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से हम कैसे बचें, उसके लिए हम फिक्र करें। ये दुनिया की मुसीबतें मामूली मुसीबतें हैं, हम जरा सी तकलीफ बर्दाश्त करके अल्लाह की इबादत करेंगे तो यहाँ की तकलीफ तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन यही तकलीफें सुखों में बदल जाएगी कल क़यामत के दिन। हम वसवसा आता है, नमाज का टाइम होता है, अज़ान होती है, अभी पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ये शैतानी वसवसा है, समझना होगा। अल्लाह ने कहा क्या है? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके चक्कर में मत रहना, ये वसवसा अपने अंदर मत डालने देना। फौरन वसवसा है, अल्लाह की पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, तो 4 बार पढ़ो, शैतान यकीनन भाग जाएगा। इस रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करते रहो, यकीनन शैतान से छुटकारा हासिल हो जाएगी। और आज और कल और परसों करते करते अपनी जिंदगी को पार मत कीजिए मेरे भाइयों और दोस्तों। अगर आप आखिरत से, वहाँ के दुखों से, अज़ाब से नजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, और आखिरत को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप अच्छा अमल कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए, सही दीन पर चलाए, सही रास्ते पे चलाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, जब हमारे ऊपर ईमान करो। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।